lossy call. Over to you, sir. Yeah, good afternoon, friends. Good afternoon. Good afternoon, Ashish. How are you? Arushi, Harsh, I hope you all doing good. Yeah, so look, this is our third class. First, I have taken the introduction of data interpretations. And objective is not only I complete the topic, objective is you are able to comprehend the data, right? It's DI. So this data is there, right? Data can be form of any. Data आपके इस फॉर्म में हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ टेबल, इन फॉर्म ऑफ लास्ट में हमने पाई चार्ट किया था, पाई data of time and work, data of profit loss discount, data of percentages, data of ratios, data of average. So what is important? Important is comprehension of the data. So when you can comprehend, when we'll understand the data. Yes or no? First we understand the data, then only we'll comprehend. It's a data interpretations. Are we together or not? Right? So I want first you read this data, comprehend it, and today we'll solve many questions. The level would be little higher than the CLAT. And we are working on two things here. One, एंड मैं आपका स्टॉप वॉच से आपका रिस्पॉन्स भी देखूंगा. एक तो बॉस है क्वेश्चन का आप रिस्पॉन्स करें. वन इज रिस्पॉन्स, अनदर इज रिस्पॉन्स टाइम. जैसे फुटबॉल खेलते होगे तुम लोग, तो अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम, आपकी टेक्निक आपको सारी पता है, यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, बट टाइमिंग यू आर टेकिंग मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड, यू लूज द गेम. आशीष, यस नो? राइट? तो सेम इन द एग्जाम, you answer the question but you answer after the exam. घर पे खोपड़ी खुजाते हुए याद आ रहा है तो इसका आंसर तो ये था, हद हो गई और सिंपल था. तो there no meaning of that response. You have to respond and we have to respond in time. Hope you understand this. So read this data, read this question carefully and try to respond. अब तुम्हारे एग्जाम में इस डेटा पे वी कैन मेक मेनी क्वेश्चंस. तो आपको सिर्फ बताना है, एक क्वेश्चन बताना है, फाइंड द टोटल सेल. क्या क्वेश्चन दिया मैंने? अ सेल्समैन is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 20,000 if the total earning of the salesman is rupees 6,800. Find the total sales पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन. सेकंड पूछ सकता है कि वो सेल आप बताइए जिसपे उसको कमीशन 9% मिला है, और वो सेल बताइए जिसपे उसको कमीशन, जिसपे उसको बोनस मिला है 1%. तो फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड द टोटल सेल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड देन further we'll proceed. So I'm giving you 1 minute to solve the question. Solve all of you. Are you there with pen and pencil? Pen copy साथ में आप लोग हैं? Am I audible? Are you solving the question or not? चलो करते हैं. You're not responding in the chat box, boss. It's a very
slow response time. Only Ashish is responding. What about rest? And data को जो आप पढ़ें तो आप देखें, you are a businessman or you are something, ये तुम्हारा खुद का काम है. जैसे होता है ना कि जब खुद पे आता है तो हम लॉस कभी नहीं लेते. ये शॉप पे आप गए होगे चॉकलेट खरीदने या कुछ खरीदने, कभी ऐसा हुआ है दुकान वाले ने तुमसे 2 रुपए भी ज्यादा ले लिए हो, मुंह तोड़ दोगे आप वहीं उसी का. Right. A salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is 6,800. We can solve this question in 2 ways. अब देखो, 2 काम हुए यहाँ पे. देखो 2 काम आप लोग भी कर सकते हो. एक कॉम्प्रिहेंशन ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन हल्का सा मुश्किल लगे और आप भाग जाए. एग्जाम थोड़ा सा भी मुश्किल लगे, एग्जाम होते ही आप छोड़ दें, मीन्स यू आर लूजर, नथिंग एल्स यू आर. या देखो, अगर आपको 0 भी आ रहा होगा ना, अगर आप दिल से अपनी बात रखोगे, यू कैन से सर आई डोंट नो एनीथिंग, देन ओनली you will discuss in a way that you can solve the questions of all class that to the minimum time. तो वहां से हम शुरू करेंगे. अब देखो, we can solve the question in 2 ways. A salesman is around 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman 6,800, find the sales. अब क्या किया उसने? जैसे आपने कोई सर्वेंट रखा, तो आपने बोला कि देखो भाई 20K तक अगर सेल होती है तो मैं आपको दूंगा लाइक कमीशन 9%. और जैसे ही आप सेल 20K प्लस करते हो आपको 9% तो मिलता ही रहेगा, 1% कमीशन और मिलेगा. Are we together? मतलब 10% कमीशन मिलेगा. अब बिल्कुल देख, try to understand me. CLAT, CAT, these kind of exam, even you are 17-18 year old, इस एज में वो 25 ईयर की 30 ईयर की मेच्योरिटी देखना चाहेंगे. मेच्योरिटी मतलब सीरियसनेस नहीं, मेच्योरिटी मतलब डेप्थ, रिस्पॉन्स, राइट. तो वन रिस्पॉन्स कुड बी, आप लोग जैसे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन वैसे सॉल्व करें कि लेट्स से 9% तक सेल किया उसने, तो एक तो 20,000 तक सेल की होगी और एक की होगी 20K प्लस. अच्छा, कोई बता सकता है कि ये सेल्समैन ने सेल 20,000 की है या 20,000 से ज्यादा की है? क्योंकि कमीशन उसको 6,800 मिला है. देख कितने लोग बताते हैं. आशीष, एनीवन? इन दिस क्वेश्चन अगर पूछूं, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आशीष, ब्यूटीफुल, गुड, मतलब यू नोज द कॉम्प्रिहेंशन. आयुष्मान, बढ़िया. दैट्स व्हाट आई वांट, कि लगे यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है. क्योंकि अगर 20,000 तक की सेल करता तो उसको कमीशन 9% मिलता, और 20,000 का 10% कितना है? 2,000. 1% कितना है? 200. 9% कितना होगा? 1,800. अब इसको कमीशन क्योंकि 1,800 से ज्यादा मिला है, इसका मतलब फॉर श्योर सेल तो ज्यादा की हुई है. अच्छा, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऑल्टर करूं, बिकॉज डीआई में एक डेटा में एक क्वेश्चन नहीं होगा, दे विल मेक मेनी क्वेश्चंस. एक तो देखो, अब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें नहीं आता, ऐसा भी नहीं है. कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें आता है, मैंने एक स्टेप नीचे उतरा, आपने कॉम्प्रिहेंड कर दिया यार, देखो बहुत प्यार से. अच्छा, अगर मैं 6,800 हटा दूं
और मैं बोलूं कि जो टोटल कमीशन मिला है वो मिला है उसको 270, देन कैलकुलेट टोटल सेल्स, तब कोई निकाल पाएगा। अगर ये डेटा ना हो, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा इज 270, कैन यू कैलकुलेट देन टोटल सेल्स? Boss, then I'll give you beautiful tricks how you can solve this question in some minutes. आशीष, ब्रिलियंट। क्यों? क्योंकि सेल्स 20,000 से कम हुई है और उसको कमीशन मिला है 9,000, तो आशीष ने क्या किया होगा, 9% ऑफ सेल्स इक्वल टू 270, सेल्स इक्वल टू 3,000 इज अ राइट कॉम्प्रिहेंशन। या इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई टोटल सेल, अब ये 20K हुई हो, 30K हुई हो, 50K हुई हो, इसको भी हम 100% सेल्स बोल सकते हैं, इसको भी हम 100% सेल्स बोल सकते हैं, और इसको भी हम 100% का मतलब क्या है, पूरी सेल, राइट? तो मैं बोलूं कि 9% की वैल्यू 270 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 30। 100% की वैल्यू क्या होगी, 3,000। राइट। आशीष, ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो पूरा? ओके, 20K, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, 20,000 पूरा लिखो। आई एम सो सॉरी आशीष। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर उसने सेल 20,000 की करी होगी तो ये भी 100% सेल है। फिर DI, एक बात बताओ, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कैन यू कॉम्प्रिहेंड, कैन यू सॉल्व RC इन इंग्लिश? नो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लॉजिक। क्योंकि एप्टीट्यूड में DI का मतलब है दे आर टेस्टिंग योर लॉजिकल रिस्पॉन्स, and that's why the limited time you have, and here we are making you, आपको एक alternate route भी दिखाया जा रहा है so that आपको कुछ क्रैम भी ना करना पड़े और बिंदास आप क्वेश्चन कर भी पाओ। तो अगर 20,000 की सेल की तो भी 100% सेल कितनी, 20,000। 30,000 की सेल की तो भी 100% सेल कितनी है, 30,000। 40,000 की सेल की तो भी 100% सेल कितनी है, 40,000। अब ये याद करो पहली क्लास जो मैंने आपको समझाया था, 100% इज नथिंग बट, ये 100% क्या है, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो टोटल, होल, ऑल, हिंदी में पूरा, इसी को तो परसेंटेज में 100% बोलते हो, ये सुनो। तो अगर पूरा बोल रखा है, टोटल बोल रखा है, इसका मतलब इसकी जगह बोल सकता हूं मैं 100% सेल्स, और ये वेरिएबल है। अगर आपने, मैंने बोला 20,000 की सेल की तो भी आपने 100% सेल की, 40,000 की सेल की तो भी आपने 100% सेल की, 80,000 की सेल की तो भी अपने 100% सेल की। ये समझ, यहां तक हम साथ साथ में हैं। देखो जल्दी नहीं है, आराम से, अगर डेटा का कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो कह रहा है कि जो शॉपकीपर से प्रॉमिस हुआ है कि यार मैं आपको 9% कमीशन दूंगा 20K तक, और 20K प्लस पे कमीशन दूंगा मैं आपको, 9% दूंगा 1% बोनस का मतलब है 1% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा मैं आपको। No, approx, lump sum is approx amount, total somewhere, all right। तो एक तो कर सकता हूं कि मैं अज्यूम कर लूं कि भाई 20,000 प्लस पे उसने 20,000 के ऊपर x रुपए की सेल की, x रुपीस की सेल की,
तो 20,000 तक तो उसको मिलेंगे 20,000 तक तो उसको मिलेंगे 1800 रुपए। यहां तक साथ में हम लोग, प्लस 10% ऑफ एक्स, वाले ये वाली सेल 20,000 से ज्यादा की हुई है, तो इस पे उसको 9% रेगुलर कमीशन मिलेगा, 1% और मिलेगा, मतलब टोटल कमीशन कितना मिलेगा 10%। और ये टोटल वैल्यू आपकी 6800 है। Do we write 10x plus by 100 equal to 6800 minus 1800, and this is nothing but 5000. Yes sir. तो x कितना हो जाएगा भाई 5000, सॉरी 50,000, ये 5000 था, सॉरी, बिकॉज एक जीरो कटेगा ना, 500 नहीं है, 6800 माइनस 1800, इट्स अ 5000। देखो मैं इससे भी आसान बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स। पहले आप प्रोसेस जो आपको आता है कॉम्प्रिहेंशन, पहले मैं वो बता दूं कि वो क्यों नहीं करना है एग्जाम में। सीखना तो आपको है कि भाई 9% पे 20,000 प्लस पे सेल की है आपने, तो 20,000 रुपए पे आपको 1800 रुपए कमीशन मिलेगा, 1800। इससे जो ऊपर सेल की है, मान लिया ये, अब ये टोटल सेल निकाली है ना, 20,000 से ऊपर आपको x रुपीस की सेल की है, तो 1800 x% ऑफ, सॉरी 10% ऑफ x, क्योंकि दिस इज द सेल जो कि 20,000 से ऊपर, जैसे मान लिया आपने 25,000 की सेल करी, तो 20,000 पे तो आपको 1800 मिलेंगे, और 5,000 पे आपको 500 मिलेंगे, क्योंकि इस पे आपको 10% मिलेगा। मुझे लग रहा है सिर्फ आशीष ही पढ़ रहा है, ऐसा है क्या? तुम लोग किसी प्रवचन में आए हो यार? आयुष्मान भी हो, वेरी गुड आयुष्मान। तो ये टोटल देखो, ये सेल हुई 1800, 20,000 तक की, एंड दिस सेल इज मोर देन 20,000, जिसपे आपको 10% मिल रहा है, हमने एक्स अज्यूम कर लिया, एंड द टोटल इज, जो कमीशन मिला है, ये कमीशन हुआ 1800 20,000 का, और ये कमीशन हुआ 20,000 प्लस पे, और टोटल कमीशन क्वेश्चन में बोल रखा है 6800 है। यस आयुष्मान, राइट आंसर यू हैव। तो इसका मतलब 10% of x equal to 6800 minus 1800, it's a 5000. तो x equal to 50,000, ये सेल हुई है 20,000 प्लस पे, और 20,000 उसने और सेल की है, इसका मतलब 70,000 की सेल की होगी किसी ने। ओहो, शॉर्टकट का वेट कर रहे हो, ऑलराइट। अब देखो, तो तुमने बताया कि नहीं आयुष्मान, आंसर आ गया था तुम्हारा यार, मुझे कैसे समझ में आएगा? अब देखो, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और फिर मैं अगला डेटा दूंगा करने के लिए, अपने आप करोगे। 9% 20K पे, 20,000 पे, और 20,000 प्लस पे जो सेल हुई है वो मिली है 9 प्लस 1% बोनस, इसका मतलब 10%। तो अगर मैं बोलूं कि यार अगर से शॉपकीपर इस 20,000 पे भी 1% कमीशन और दे देता, तो ओवरऑल आपका कमीशन 10% बन जाता है। यस और नो? पहले इस चीज को समझो आशीष भाई, यही तो दिक्कत है कि 20,000 तक आपको 9% मिल रहा है, एंड 20,000 प्लस पे आपको मिल रहा है 10%। तो अगर 20,000 पे 1% और कमीशन दे दे शॉपकीपर, तो आपकी ग्रॉस ओवरऑल जो सेल बनेगी, कमीशन बनेगा, वो 10% बन जाएगा। यहां तक हम साथ में है आयुष्मान? बिल्कुल। तो हम करें क्या, तो ये 6800 कमीशन,
ये तो आपको 20,000 तक 9% कमीशन है और इस प्लस पे 10% कमीशन। तो अगर मैं 20,000 का 1% और कैलकुलेट कर लूं तो 20,000 का 10% इट्स 200, सर 2,000 ये वैल्यू, 1% इट्स 200। तो अगर मैं 6,800 में 200 ऐड कर दूं तो ये मेरा ओवरऑल कमीशन कितना बन जाएगा? 10%। यस मैम, पहले इतनी बात बताओ। मतलब अगर ओवरऑल 10% कमीशन उसको दिया जाए, आई रिपीट इट, भी 20,000 तक में ही तो ओनली इन 20,000 ही हैज गिवन 9% कमीशन। आयुष्मान को समझ में आ गया? देखो कोई बात नहीं। और 20,000 प्लस पे उसने दिया है 10% कमीशन। तो इसमें अगर मैं 1% कमीशन 20,000 का और ऐड कर दूं तो ओवरऑल 10% कमीशन हो जाएगा। लेकिन उसमें 6,800 में आपको 20,000 का 1% दैट इज 200, यू हैव टू ऐड इट। यस नो आशीष? नाइस। तो मैंने क्या किया कि फटाफट 20,000 का 1% निकाला, दैट इज 200, और ये बन गया कितना? 7,000। ये वैल्यू किसकी होगी? 10% कमीशन की। तो मैं कह सकता हूं 10% की वैल्यू 7,000 होनी चाहिए। तो 100% कितना होगा? 70,000। यही तो आंसर निकाला था आयुष्मान आपने। अभी एक लाइन का कॉम्प्रिहेंशन, जब तक क्लैट के दूसरे स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे तब उससे पहले तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। यस, एंड even I convince you with the logic, the no formula is required, only your different observation is needed, Ayushman. अब अगर मैं राइट अब अगर यहीं पे आप देखो, इसी क्वेश्चन करके देखो कि इफ यू गॉट दिस इज द सेम अरेंजमेंट और बोलता कि उसको कमीशन टोटल मिला है 5,800 और 3,500 ये कमीशन मिला है। कैलकुलेट द टोटल सेल्स। ये कमीशन नहीं मिला है, ये कमीशन मिला है। टोटल सेल्स क्विकली। नाइस आशीष। अब देखो, यू रिस्पॉन्डेड इन 1 सेकेंड एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आशीष, एब्सोल्युटली करेक्ट। What about other Arushi Pathak, Navidisha, सिमरन, सिमरन सिंह, सुमित? मुझे लग रहा है कि अगर तुम लोग ऐसे रहे तो हो सकता है कि मुझे क्राइम पेट्रोल में आना पड़े यार। ये रिस्पॉन्स यस सुमित। देखो मेरे लिए लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, एंड वॉट एवर आई टॉक ऑन माई एक्सपीरियंस, वॉट इज द फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट? कोई बताएगा? फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट टाइम, फंडामेंटल, क्योंकि कन्वर्जेशन भी तो हम टाइम में करते हैं आशीष। आर वी मेकिंग मनी फ्रॉम टाइम और टाइम फ्रॉम मनी? एवरीथिंग वी आर डेवलपिंग इन टाइम। आप सक्सेसफुल हो जाए, आप या फ्लॉप हो जाए, आप इसी टाइम में होंगे। तो मेन इन्वेस्टमेंट इज टाइम, राइट? तो द वे यू रिस्पॉन्ड, because I love time, because to enjoy even time is needed. Can you connect it now? So if you're not getting, respect your time, because in the class apart from your fee you are investing your time जो कभी वापस नहीं आएगा। मुझसे भी कुछ शिकायत है कि सर थोड़ा धीमे करो, थोड़ा सा ऐसा डेटा ले लो,
थोड़ा ऐसा कर लो. You can give me feedback because my chat box is open. So with me, either I'm teaching or not teaching. I'm teach by choice. So even we are working on the online platform, be connected to heart, like a friends. मुझे लग रहा है कि पहली क्लास तुम लोगों ने अटेंड नहीं करी थी, तो दोस्ती बहुत हुई नहीं. आगे करते हैं, चलो. ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड दिस डेटा. देखते हैं. ऑलराइट, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड दिस डेटा. देखता हूं, मैं टाइम नोट कर रहा हूं, कितना टाइम में करते हो तुम लोग. Yeah, yeah, fine, fine. Thank you very much. Thank you, Harsh. All right. अब देखो how you solve सिमरन. से मुझे पता है सिमरन ने कैसे सॉल्व किया होगा. लेट्स से डॉग है. सिमरन, हैव यू सॉल्व लाइक दिस? Yeah. Because the two comprehension again, we can solve. There are two types of animals in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat taken 7 biscuits and each dog taken 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats and days named dogs. Let's say X cat and Y dogs, and this number is 45. So X cat, X dog, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D डॉग है और C कैट है और ये नंबर है 45. हर डॉग, इफ कैट टेक्स 7 बिस्किट्स, तो C कैट्स हैं,
तो एक कैट 7 बिस्किट खा रही है, तो 7C कितनी खाएंगे? 7C. वन डॉग 9 बिस्किट खा रहा है, सो डी डॉग्स कितने खाएंगे? 9D. तो 9D प्लस 7C इक्वल टू 355. पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन. एंड इफ यू सॉल्व यू गेट द आंसर. यस सिमरन. बट सिमरन एक बात बता यार, टेल मी वन थिंग. Simmer, in short, Simran, Sim, not dim. Each cat takes 7 biscuits and each dog take 9 biscuits. Dog ले रहा है 9 biscuits और cat खा रही है, I'm sorry, dog खा रहा है 9 biscuits और cat खा रही है 7 biscuit. अगर डॉग भी 7 बिस्किट ही खाए, मैं नहीं कह रहा हूं 7 खा रहा है, अगर इफ, तो मैं बोल पाऊंगा कि सारे एनिमल्स 7 बिस्किट खाएंगे? यस और नो एवरीवन? यूज लिटिल सेंस. इफ डॉग ऑल्सो टेक 7 बिस्किट्स, तो कैट तो ऑलरेडी 7 बिस्किट खा रही है. इसका मतलब वी कैन से ऑल एनिमल्स टेक 7 बिस्किट्स एंड देयर आर 45 एनिमल्स. तो अगर डॉग भी 7 बिस्किट्स खाए, राइट, तो सारे एनिमल्स कितने बिस्किट खाएंगे? कैट भी 7 बिस्किट खा रहा है, डॉग भी 7 बिस्किट खाए, तो इसका मतलब 45 एनिमल्स हैं. 45 इंटू 7, 315. ये सुनो, इसका मतलब 315 बिस्किट खाए जाएंगे अगर डॉग भी 9 की जगह पे 7 बिस्किट खाए. लेकिन इसने खाए तो 9 है, बदतमीज डॉग. एंड दैट्स व्हाई टोटल बिस्किट 315 आते अगर डॉग 7 खाता, लेकिन आए कितने हैं? 355. व्हाई? बिकॉज हर डॉग ने 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए. तो मैं देख लूं 355 और 315 का डिफरेंस क्या है. 355 और 315 का डिफरेंस क्या है? 40. तो ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं. व्हाई? क्योंकि हर डॉग ने 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए हैं. ये समझ. तो इसका मतलब 2n इक्वल टू 40 होने चाहिए. तो डॉग्स कितने होंगे? 20. 40 जो बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए, बिकॉज हर डॉग 2 बिस्किट खा रहा है, तो 40 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डॉग. तो डॉग कितने हैं? 20. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 45. तो कैट कितनी होंगी? 25. नो नीड लीनियर इक्वेशंस. आशीष, सिमरन, तो क्या करना है इन इस टाइप के डेटा में? व्हाट वी नीड टू डू? यस एग्जैक्टली. देख, अब तुम्हें थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा दैट इन क्लैट इफ यू अपीयरिंग, योर एप्टीट्यूड सेक्शन कैन बी, you know, the game changer. If you finish the aptitude section, you can finish it in 10 to 12 minutes. You can devote rest of time to decision making, to reading comprehension, to other. So here I'm not only teaching that you solve only question, you solve in the minimum time. Because एक डेटा के there are infinite comprehensions are possible. जैसे तुमने कहीं कोई क्राइम हुआ है, अब देखो एक डेटा था सुशांत मर्डर या सुशांत कमिट सुसाइड. एक इवेंट तो एक ही है, दिस डेथ ऑफ सुशांत. नाउ देयर n number of people comprehending their own way. सही कॉम्प्रिहेंशन कौन है? जो आपको ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाए, रियलिटी तक पहुंचाए. यस और नो? इज दैट क्लियर? You can see the importance of data interpretation in daily life also. It is important. And the students who are coming regular in the classes, they are highly deep.
I love it. All right. Try to solve this also. Try to solve this too. अब देखो इसमें मैं सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं सो दैट आपको ज्यादा डेटा में समझा पाऊं इन मिनिमम टाइम. As class is for the 1 hour, right? I can deliver. देखो एक क्वेश्चन सिर्फ बहाने हैं to give you some light, some idea. अब एक काम, are you solving this question? Simran, Ashish, Arushi, yes, solid. Yeah, let's solve this so that we can pick some more data to comprehend. In an election, 2 candidates participated. अब देखो पहली बात, only 2 candidates participated. So your observation has to be a little deep. जैसे मैं बोलूं, and this is important, क्योंकि if only 2 candidates participated, if one got 50% vote, तो दूसरे कितने मिले होंगे? Exactly. तभी तो मतलब निकलेगा. And if you're not clear that only 2 candidates, if one received 50% vote, we cannot say how much other received. जब तक हमें ये नहीं पता है कि only 2 candidates are there. तो देखो एक तो है इंग्लिश जो आप सिंपल पढ़ पाते हो. तो in election there are 2 candidates participated. 10% votes did not vote. 10% voters, जो 10% वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया. आउट ऑफ विच, अब जिन्होंने वोट किया है 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड and the winner get 70% of the total valid votes and wins the election by 7290 votes. Then find the voters in the voting list. अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. वोटर इन द वोटर लिस्ट, valid votes, how many votes winner got, how many vote loser got. You can make 4-5 questions of the same data. Yes or no? Yes or no? Ashish, Arushi or something. First, understand the data. Data समझ में आ गया यार? What is your जो आपकी टीचिंग हुई है 12th क्लास तक अभी, that was not the experiential teaching. इसीलिए अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसीज देखो, that is a beautiful amendment. और इसको आज अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, and from 61 to in 68, in 84, in 92, right? तो नाउ सोसाइटी, यूपीएससी, क्लैट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन रियलाइजिंग दैट स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंशियल एंगल हमने अगर मार दिया तो इंसान को हमने मशीन बना के रख दिया, उसको ट्रेन भी नहीं कर सकते फिर तो. Difference between we and machine, we can evolve.
अब देखो, अब क्या करूं कि यार जैसे बोला टोटल, देन फाइंड द वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। तो एक बात बताओ, वही सेंस, वही अंडरस्टैंडिंग पहली क्लास की, अगर 20,000 वोटर्स हैं टोटल, तो 100% वोटर्स कितने हो यार? 20,000। अगर 50,000 भी वोटर्स होंगे तो 100% वोटर्स कितने होंगे? 50,000। 90,000 अगर वोटर्स हुए तो 100% वोटर्स कितने होंगे? 90,000। अच्छा, टोटल वोटर इन द वोटर लिस्ट, मैंने इसको 100 एज्यूम कर लिया कि टोटल वोटर लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में 100 लोग हैं। यहां तक हम सारे साथ में हैं? यस नो, यस नो। और अगर क्लियरिटी नहीं आएगी तो मैं एक लेवल नीचे जाके एक क्वेश्चन कराऊंगा आपका। डोंट वरी एंड डोंट डू फॉर्मेलिटी विद मी यार। आई लव टू टीच माय फ्रेंड्स एंड टू मी नो वन इज जूनियर, राइट? दिल ना तो कभी बड़ा होता है ना बूढ़ा होता है, प्रोवाइडेड उसको, और ये बचपन आपको खोने की जरूरत नहीं है, बी देयर विद इट। तो टोटल वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं? 100। 10% वोट डिड नॉट वोट्स, तो टोटल कितने हैं? 100। इसमें से 10 लोगों ने वोट ही नहीं किया होगा, अगर 100 है तो डिड नॉट वोट। तो कितने लोगों ने वोट किया होगा? 90। अब अगर मैं एक सवाल करूं आशीष कि वो 100% लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हैं? 10%। 10। तो ये वैल्यू भी अपने आप में 100% है, ये वैल्यू भी अपने आप में 100% है, और ये वैल्यू भी अपने अपने आप में 100%। यहां तक हम साथ में हैं यार। 100% people who are voted in the election is 90। अच्छा, अब कह रहा है इफ विनर गेट 70% वोट्स। अब दो ही लोग इलेक्शन में हैं। अब जो वोट, जो वन 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड आउट ऑफ डिड नॉट वोट, 10% डिड नॉट वोट, 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। तो 90 का 10%, इसका मतलब 9। नो, नॉट एट ऑल आरुषि। 90 का 10%। अब यहां पे डेटा, दैट इज द रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली यू आर राइट आशीष। यस आरुषि, नो वरी अबाउट इट। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसका मतलब 9 people, if you taken 100, once you assume, you cannot assume the data in each and every step. So 9 people, 10% declare invalid, 10% of the one who voted, क्योंकि invalid तो वही होगा जिसने वोट किया होगा। तो 9 आपका क्या हो गया है? इनवैलिड। इसका मतलब 81 आपके टोटल, 100% वो वोट्स जो वैलिड है वो कितने हैं? 81। Are we together or not? Yes or no? अब कह रहा है कि द विनर गॉट 70%। अब एक बात बताओ इसी यहीं से, अगर विनर को 70% वोट मिला है टोटल का, तो लूजर कितना मिला होगा? एग्जैक्टली आशीष, इफ विनर गॉट 70, वेरी गुड, तो लूजर गॉट 30। तो कितने वोट, कितने डिफरेंस से जीता है वो? 40%। 40%, 40%, राइट? जैसे यू स्कोर 90 एंड आई स्कोर 100, तो मैं तुमसे कितने नंबर से जीता हूं? 10 नंबर से। मेरे कितने नंबर इस 100, तुमसे कितने नंबर जीता हूं? 10 नंबर से। इसका मतलब 40% ऑफ 81, 40% ऑफ 81 मस्ट बी 7290। यस नो, यस नो। और 40% लास्ट क्लास में अगर आप हो तो यार 1/5, ये आपका 20% है। आई थिंक तुम्हारे साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कंप्लीट डेटा लेने की जरूरत है। कुछ यू नो कुछ सम कॉन्सेप्ट्स
आई नीड टू डिस्कस, तो जिससे और जल्दी हो जाए। तो 81 का 40% मतलब 2/5, इसका मतलब 2/5 ऑफ 81। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7290, राइट? तो 100% कितना होगा? यू कैन कैलकुलेट इट। ये क्या होंगे? टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। आई थिंक समझ में आया। और सॉल्व भी कर सकते हो। 81 9 जा 729, राइट? इट्स अ 45। 45, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 45 इंटू 5, 2 जीरो लगा दोगे बस। देखो, होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। ये लास्ट का कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कर दूंगा। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, क्विकली आई रिपीट इट। सो लुक दिस क्वेश्चन। इन डेटा में क्या करना है? टोटल, जब तुम एग्जाम में 100 वगैरह एक्स वगैरह मानते हो, टोटल यू टेकन 100, 10 डिक्लेयर इनवैलिड, सॉरी नॉट वोटेड। तो वोट कितना किया होगा? 100 माइनस 10 इज 90। इसका 10% इनवैलिड, 9 इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे? 81। अब 81 का 40% 7290 है। व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस। विनर विंस द इलेक्शन, in winner get 70% votes and wins by, so this value is not 70%, so wins by. There's a difference between winner and loser. So if winner got 70%, so loser got 30%, the difference is 40%. ये टाइम भी अगर सेव करना है तो दिमाग थोड़ा और लगाना पड़ेगा। पूछो कैसे? अगर विनर को मिल रहा है 50, तो लूजर कितना मिलेगा? 50। इसका मतलब ये हुआ, इफ विनर गॉट 60, लूजर गॉट 40। तो मैं देखूं, अगर विनर गॉट 60 एंड 60 इज 10 मोर देन 50, तो लूजर गॉट 10 लेस देन 60, तो डिफरेंस हैज टू बी 10 का डबल 20। तो मैं फटाफट देखता है यहाँ पे, विनर गॉट 70% एंड 70 20 मोर देन 50, इट मींस डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर इज नथिंग बट 40%। आई होप वी आर टुगेदर। अब एक डेटा मैं आपको देता हूं करने के लिए बना के। कटप्पा इज द फ्रूट सेलर, और कटप्पा की बकेट में इतने सारे फ्रूट्स हैं, 10,000। इतने फ्रूट्स हैं किसके बकेट में? कटप्पा के बकेट में। एंड ही इज अ फ्रूट सेलर, ही इज नॉट द वन हु वाज विद बाहुबली, ही इज अ फ्रूट सेलर। राइट आयुष्मान। 40% आर मैंगोज एंड रेस्ट फ्रूट्स आर एप्पल। जो मैंगोज हैं उसका 20% मैंगोज आर रेड एंड रेस्ट आर ग्रीन। जो एप्पल्स हैं उसका 40% एप्पल्स आर रेड एंड रेस्ट आर ग्रीन। The first question, calculate total percentage of red fruits in a bucket, green mangoes in the bucket.
आशीष रेड 65, टोटल रेड फ्रूट्स, रेड मैंगोज नहीं बोला मैं, रेड फ्रूट्स 65%, ओके। ग्रीन मैंगोज, अब देख देख, अब ये डेटा अलग है। आयुष्मान 3200, आयुष्मान यू आर लिटिल इमोशनल, तुमने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारी आंसर तो तुम्हारे आते हैं, बट योर अप्रोच इज ट्रेडिशनल। तो इसी लर्निंग को थोड़ा सा अगर ड्रिफ्ट, थोड़ा सा डायरेक्शन दोगे, योर स्पीड वुड बी ब्यूटीफुल। एंड हम साथ में मिलकर कर लेंगे ऐसा, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, स्पीड भी आ जाएगी यार, स्पीड लर्निंग का बाई प्रोडक्ट है। सीखे और उसको अप्लाई किया, स्पीड आ जाएगी। आपको जैसे आयुष्मान, आपको साइकिल चलानी आती है आयुष्मान? यस। तो जिससे भी तुमने साइकिल चलानी सीखी थी, या एक्टिवा चलानी आती है, कितने लोग एक्टिवा चला लेते हैं? तो एक्टिवा चलानी सीखी होगी तुमने किसी से, ये सीखा क्या कि स्पीड बढ़ानी भी सिखा दो प्लीज। 20 तक तो चला पाता हूं, अब 40 तक कैसे चलाऊंगा? तो 40, ये स्पीड आपने कैसे बढ़ाई? लर्निंग, सीखा, उसको अप्लाई किया, स्पीड अपने आप आ गई। एग्जैक्टली exactly. तो लर्निंग, लर्निंग ऐसा नहीं खुद से नहीं आएगा, तुम सोते रहो स्पीड एक्टिवा सीखो ही ना और स्पीड आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो क्या है, जितने बकेट में फ्रूट्स हैं, अब 10,000 फ्रूट्स में तो तुम लोगों ने कर लिया आयुष्मान। अगर मैं लिख देता, मैं तो अच्छा इंसान हूं इसलिए 10,000 लिखा, क्लैट में लिख देते कि कटप्पा के बकेट में 3, 2, 9, 7, 8, 4, 5 3 फ्रूट्स थे, फिर आयुष्मान बोलता कि अगर सिलेक्ट नहीं करना था तो पहले बोलते, बुला करके इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही मन करता ना आयुष्मान? ये सुनो, इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, सेम क्वेश्चंस, आपका बीपी लो हो जाएगा, राइट? बट अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल में देखें कि यार उसके बकेट में 10,000 फ्रूट्स थे, तो 100% फ्रूट्स कितने थे? 10,000। इतने फ्रूट्स थे तो 100% फ्रूट्स कितने थे? इतने। 40,000 फ्रूट्स होते तो भी 100% फ्रूट्स कितने होते हैं? इतने। तो मैं बकेट में चुपचाप 100 फ्रूट्स मान लूं। अब मैंगोज कितने हैं? 40%, तो 40 मैंगोज होंगे। अब अगर 40 मैंगोज हैं, इसका मतलब एप्पल्स कितने होंगे? 60। यहां तक हम दोनों साथ में हैं सारे? आरुषि, आरुषि और दिया, राइट। सुमित, यस, ऑलराइट। अब कह रहा है कि ये कितने हैं? एप्पल्स। अब अगर आप लोगों से एक सवाल करूं कि 100% मैंगोज कितने हैं? कोई बात नहीं आरुषि, नेटवर्क थोड़ा बेटर ले लो, यहां से कभी दिक्कत होती है। तो 100% मैंगोज कितने हैं? 40। 100% एप्पल्स कितने हैं? 60। यस नो? तो 100% मैंगोज है 40, 100% एप्पल्स कितने हैं? 60। अब कह रहा है कि जो एप्पल्स है 100%, उसका 20% रेड है। रेड किसका है? मैंगोज, सॉरी, 20% रेड है टोटल का, तो इसका मतलब 40 का 10%, इट्स 4। यहां जीरो, यहां डेसिमल लगा दूंगा। अच्छा, 40 का 10% कोई ऐसे तो नहीं निकालता है बाय 100? जी नहीं। 40 अगर 100%, 10% कितना होगा? डेसिमल यहां लग जाएगा, 4। ऑलराइट, तो 40 का 10% इज 4। अगर 10% 4 है तो 20% कितना होगा? 8। इसका मतलब 8 क्या होंगे? रेड मैंगोज। 40 माइनस 8, 32। ये क्या होंगे? ग्रीन मैंगोज। अब बिकॉज आई हैव टेकन डेटा 100 टोटल को, तो ये डेटा जो आ रहा है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आ रहा है।
यस नो? अब 100% एप्पल्स कितने हैं? 60, उसका 40% रेड है, तो 10% कितना होगा? 6, तो 40% कितना होगा? 24, राइट? तो 40% 24 है, तो 60% मतलब कितना? 36। ये अगर रेड है एप्पल, तो ये क्या होगा? ग्रीन। अब एक बार आपने ये डायग्राम बना लिया ऐसे, अब कितने भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आप सब कर पाओगे। अब पूछा कैलकुलेट टोटल परसेंट ऑफ रेड फ्रूट्स, तो रेड मैंगोज कितने? 8, और रेड एप्पल्स कितने हैं? 24, तो टोटल कितने हुए? 24 प्लस 8, 32 परसेंटेजेस। नाउ इफ यू टेक अपार्ट फ्रॉम 100 की जगह पे आपने अगर 1000 ले लिया, तो यहां सब जगह जीरो लग जाएंगे, तो यहां पे आएगा 320, एंड यू हैव टू कन्वर्ट अगेन इनटू परसेंटेज, दैट इज 32%। मतलब even if you use this data, you'll take more time. Is that clear or not? So whatever numbers are given in the exam, we can take total as 100. It's a beautiful. ये भी हो सकता है कि एग्जाम में बोले कि कटप्पा के बकेट्स में एक्स फ्रूट्स थे, 40% मैंगोज है, 60% एप्पल्स है, सारा डेटा ऐसे गिवन होता, और बोलता कि जो रेड मैंगोज हैं, राइट, और जो रेड एप्पल्स हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 320 फ्रूट्स है, तो बकेट में फ्रूट्स कितने होंगे? तो मैं फटाफट देखता कि यार रेड मैंगोज कितने आ रहे हैं? 24%। सर रेड एप्पल्स कितने आ रहे हैं? 24%। रेड मैंगोज कितने आ रहे हैं? 8%। तो डिफरेंस कितना है 24 8 का? 16%। तो रेड मैंगोज और रेड एप्पल्स में परसेंटेज में डिफरेंस है 16%, और वो बोल रहा है कि रेड एप्पल्स रेड मैंगो से 320 ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं 16% की वैल्यू 320 होनी चाहिए। तो अगर 16% 320 है, तो 1% कितना होगा? 20, और 100% कितना होगा? बिकॉज बकेट में फ्रूट कितने एज्यूम किए थे आपने? एक्स नहीं एज्यूम किए थे, 100 एज्यूम किए थे, एक्स को 100 ले लिया था, इट्स 2000। आशीष, नाउ the problem will be solved. The questions are extremely simple. So in this kind of data, we'll take total fruits, क्योंकि total आप ले रहे हो ऐसा नहीं, 100% का मतलब ही है total. Are we together till now? So now I'm giving you some questions to solve, जो आपको घर से करना है। कुछ क्वेश्चंस दे दूं करने के लिए? Just give me 1 minute, 30 seconds. Yeah, write down, take the snapshot of this question. Take the snapshot of this question, all of you. All right.
बहुत बढ़िया. Take the snapshot of this too. ये तो किया हमने अभी शायद, ये भी किया. एक ही क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले पाया है. Take the snapshot of this. This. Take the snapshot of this too, Arushi. This. Very good. And the last. तुम्हें लगा कि आज बहुत सारा काम दे दिया सर ने. Take the snapshot of this, and you have to solve. There are 5 questions. In this, 4 questions I think. Original consumption, current consumption, original price, current price. Done. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for taking out time and joining us today for this session. Thank you very